Hello everyone, so we are back, and as we have discussed exercise set 1.1 in a previous video, we are going to continue with page 6. So far, we have only considered points on the two coordinate axes. What about the coordinates of points that are not on either of the axes? The plane in which the axes are situated is called the Cartesian plane, the coordinate plane, or the xy plane. So, we have discussed in the book the points that are lying on the x-axis or on the y-axis, be it below the origin, above the origin, on the right of origin or on the left of origin. हमने चारों केसेस हमने डिस्कस किए थे, बट ऑल द पॉइंट्स वर लाइंग ऑन द एक्सिस. दोनों में से किसी एक एक्सिस पर पॉइंट्स लाई कर रहे थे. नाउ दिस सिस्टम, जो प्लेन जिस पर दोनों एक्सिस लाई करते हैं, वी कॉल इट कार्टेशियन प्लेन. वी कॉल इट द कार्टेशियन प्लेन. We call it the coordinate plane, or you can also call it as the xy plane. Now as we have discussed, जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये दोनों एक्सिस प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, which are called quadrants, जिनको हम quadrants बोलते हैं. Now when we talk about the first quadrant, अब इन चारों पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. Okay, let's look at this figure. So this is the first quadrant on the right, as you can see. This is the first quadrant. Now if we talk about a point, this point, what are the coordinates of this point? Let's call it A. The coordinates of this point would be 4 comma 1, because it is the 4 x coordinate is 4 and the y coordinate, as you can see, is 1. So coordinates of A are 4 comma 1. Now when we talk about the coordinates of this point, the x coordinate will be 2 and the y coordinate will be 3. So the coordinates of this point are 2 comma 3. Now any point that lies in this quadrant, which is the first quadrant, there the numbers that are lying on the x axis are positive, the numbers that are lying on the y axis are also positive. So all the numbers that are lying, all the points that are lying in the first quadrant are positive, which is why we say x and y are both positive in the first quadrant. Now let's talk about the second quadrant. When you look at point Q, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की. तो जैसे कि आप देख रहे हो, पॉइंट Q इज लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट. तो Q के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -5 and 3. So if you see in the second quadrant, let's talk about this point for example. Now what are the coordinates इस point B के coordinates क्या हैं? From the x-axis it is lying on -2, and from the y-axis we take the point 4. So coordinates of point D are -2 comma 4. तो D point के coordinates हैं -2 comma 4. अब इधर आप कोई भी पॉइंट लोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये पॉइंट भी लेते हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? लेट्स कॉल इट पॉइंट M. पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताओ? दे विल बी -6 comma 2, बिकॉज फ्रॉम दी एक्स एक्सिस ये -6 पर है, और अगर हम वाई एक्सिस चेक करें तो इट इज एट 2. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? -6, 2. अगर हम कोई भी पॉइंट की बारे में बात करें इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो अगर आप नोट करोगे कि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या आ रहा है? नेगेटिव, और वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज पॉजिटिव. क्योंकि अगर आप नोट करो तो हमारे ये सारी लाइन, जो ये पूरा एरिया है सेकेंड क्वाड्रेंट का, इट इज गेटिंग कवर्ड बाय दिस नेगेटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई आर कवरिंग इट. तो इसीलिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? नेगेटिव एक्स कॉमा वाई. कोई भी पॉइंट जो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो इस फॉर्म में होगा. लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड क्वाड्रेंट. नाउ इफ यू नोटिस, the third quadrant is lying between the negative x and negative y.
सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, इस क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लाई करे उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, दोनों नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। लेट्स सी, अगर हम इस पॉइंट के बारे में बात करें, ये पॉइंट x से -2 पर है और y से भी -2 पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -2, -2। अगर हम इस पॉइंट के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल लेट्स कॉल इट P, तो इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x से ये है -6 पर और y से है ये -3 पर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -6, -3। Here everybody, moving on, हमारा लास्ट क्वाड्रेंट बचा विच इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ इफ यू लुक एट पॉइंट एस, अगर आप पॉइंट एस को देखोगे तो यहाँ पर x इज पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये वाला जो क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट, ये x एक्सिस के सारे नंबर्स पॉजिटिव है इधर, और इधर y एक्सिस के सारे नंबर्स कैसे हैं, नेगेटिव। तो अगर हम कोई भी पॉइंट इधर और लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने अगर यही पॉइंट लिया, लेट्स कॉल इट E, तो इस E पॉइंट के अंदर E की कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5, -2, तो x पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव। और अगर हम इस पॉइंट के बारे में भी बात करें, लेट्स कॉल इट F, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, 2, -3। इसमें भी अगर आप नोट करो तो हमारा x क्या है, पॉजिटिव और y इज नेगेटिव। क्वाड्रेंट 1 में दोनों x और y पॉजिटिव, क्वाड्रेंट 2 में क्या होता है, x नेगेटिव और y पॉजिटिव। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात करें, इसमें दोनों कैसे होते हैं, नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो इसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। Clear everybody? So now that you have all understood, write down the answers to these four parts. In which quadrant will each of them lie? Now moving on to the next page, we have think and reflect. So what जो भी हमने डिस्कस किया है वही चीज यहाँ पर कवर की गई है। Let's move on. What is the x coordinate of a point on the y axis? अगर कोई पॉइंट, जैसे हमने डिस्कस किया है, अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। इज देयर अ सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस? अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है तो क्या जनरलाइजेशन है कि उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। So if there is a point lying on the x-axis, then its y-coordinate will be, y-coordinate is 0. Does point Q, which is yx, ever coincide with P xy? Justify your answer. Now they are saying, if we have a point, if we have a point Q which is yx, and we have a point P which is x comma y, will they ever coincide? Now if you talk about point 1 comma 2 and replace their positions 2 comma 1, that means they are both two different points, they are not the same. If they have to coincide, अगर इन्हें coincide कराना है, उस उसका क्या मतलब है, अगर हम ऐसे दो अलग डिफरेंट नंबर्स लेंगे, दो अलग अलग वैल्यूज लेंगे एक्स और वाई की, तो दे कैन नेवर कोइंसाइड। बट व्हेन इफ एक्स एंड वाई आर इक्वल, then the points can coincide. So this will happen only when x and y are both equal. Okay, moving on to the next part. If x is not equal to y, then xy is not equal to yx, and xy is equal to yx if and only if x is equal to y. Is this claim true? Yes, it is true. Why? Because हमने अभी थर्ड क्वेश्चन में यही डिस्कस किया कि अगर x और y इक्वल नहीं है, मतलब
अगर हम जैसे अभी हमने प्रीवियस केस में 1 और 2 लिया, अगर x नॉट इक्वल टू y है तो 1 इज नॉट इक्वल टू 2 एज वी नो। और अगर हमने जैसे हमने डिस्कस किया है कि 1, 2 और 2, 1 दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, दे आर नॉट इक्वल बिकॉज दे विल नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर। इक्वली नहीं है तो कोइंसाइड कैसे कर सकते हैं? ये तब पॉसिबल होता है जब x और y इक्वल हो। अगर हमने x और y दोनों की वैल्यू 1 ले लिया फॉर एग्जांपल, तो हमारा पॉइंट बनेगा 1, 1। अब इसको आप q मार्क करो या p मार्क करो, द पॉइंट रिमेन्स द सेम क्योंकि 1, 1 है। तो वो x कोऑर्डिनेट भी 1 है और y कोऑर्डिनेट भी 1 है। तो this is only possible when x and y are both equal. So we will continue with exercise set 1.2 in the next video.